Yes, morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Screen is visible. Yes, sir. Yes, sir, it's visible. Word screen, na? Microsoft Word screen. Word screen is visible, beta. Yes, sir. Yes, sir. So, yeah, morning everyone. We'll be starting with the next topic. That is next unit is there. That is intelligent agents. Fine. Agents हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम. एजेंट्स हम बेसिकली किसको रेफर कर रहे हैं? Yes. What we are referring Intelligent programs. agents. Yes. Okay. Sir, intelligent programs or intelligent robotic devices. Mhm. Okay. Yeah, that is fine. So agents we are basically referring to as an intelligent programs or the devices with some intelligence being built into. Fine. So we'll be seeing in this intelligent agents various topics we'll be seeing. What are the various topics is what are agents, then rationality factor is there, then performance measure we'll be discussing, and we'll be discussing different environment types in which agents will be operating, and fifth one is different types of agents. Fine. So under this intelligent agents, we will be seeing these topics. What are agents? The definitions of agents, their architectures, what are the components of agents, how they work basically. Then rationality हमने discuss किया था last time, previous two classes. What is rationality is doing something right, doing something justified, and trying to maximizing the output with whatever requirements or whatever inputs are given. Fine. Then performance measure is there. The third one, with performance measure, what we mean to say is जो भी टास्क हमारे एजेंट्स कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं या रोबोटिक डिवाइसेस हैं, जो भी टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द इनपुट दे आर कैप्चरिंग, उस टास्क की performance क्या है? Fine. If we have some allocated some task to some agent, now the agent is doing that task, but we should be able to measure the performance of the task in terms of something. Fine. So that कि हमें पता लग सके कि जो भी एजेंट कर रहा है whether वो सेटिस्फाइबल है भी है या नहीं है, अगर नहीं है तो और क्या चेंजेस की जरूरत है, अगर if it is already doing the best, then what else need to be seen. Then fourth one is environment types in which agents will be operating. Fine. अब environment type से हमारा मतलब है कि जिस भी माहौल में जो जो
जो हमने सिचुएशन दी हैं एजेंट को, या जो भी इन्वायरमेंट हमने प्रोवाइड किया है एजेंट को, तो किस तरह का इन्वायरमेंट है, मतलब कि वो जो एजेंट है आपका वो सारे इन्वायरमेंट को कैप्चर कर पा रहा है, वेदर द एजेंट इज एबल टू कैप्चर द इन्वायरमेंट थॉरली और पार्शली। उसके मतलब सेंसर्स किस तरह के हैं, वेदर दे आर एबल टू कैप्चर ऑल द इंफॉर्मेशन or they are able to capture some partial information, and goes on like that. Fine. Then different types of agents are there. मतलब depending upon the उनकी जो इंटेलिजेंस है वो कितनी कितनी कैपेबिलिटीज है उसमें एजेंट में, based upon their intelligence capabilities will be defining the different types of agents. Fine. So these 5 to 6 topics are there. We will be discussing in this intelligent agent. Fine. So any doubts in this regarding this introduction of intelligent agents? ये terms clear हैं सभी को? Agents, rationality, performance measure, environment types, different types of agents. Yes, sir. These terms should be clear to each and everyone, because these terms sir. will be discussing in detail. Right? तो पहले हम आते हैं what are agents. Fine. Agents basically क्या है? Agents suppose I'm going with some basic diagram representation. So this is your agent is there, and this is the environment in which the agent will be operating. Fine. So this is our intelligent program or some robotic device. Fine. So what it will be doing is this is diagram visible है? Yes, sir.
So we have this basic diagram is there. ये हमारा एजेंट है, दिस इज अवर एजेंट जो इंटेलिजेंट प्रोग्राम है या इंटेलिजेंट रोबोटिक डिवाइस इज देयर। ये इसका एनवायरनमेंट है जिसमें ये एजेंट बेसिकली ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये एक तरफ इसके सेंसर्स लगे हुए हैं एजेंट के, थ्रू दीज सेंसर्स it is trying to capture the inputs from the environment, fine। अब अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में जैसे आईज हैं, तो विद आईज दे आर कैप्चरिंग सम इमेज इंफॉर्मेशन, फाइन। और अगर हम किसी डिवाइसेस की बात करें, उनमें कैमराज इंस्टॉल्ड होते हैं, एंड विद दोज कैमराज दे आर कैप्चरिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज perceived from the environment are captured to the sensors, which are basically working as an input to this agent basically, fine। और एक तरफ एजेंट के आपके पास है एक्चुएटर्स हैं। एक्चुएटर्स से क्या मतलब है हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा व्हीकल है, कोई इंटेलिजेंट ड्राइवरलेस व्हीकल है, उसमें ब्रेक्स लगे हुए हैं, तो बेस्ड अपॉन दैट कैप्चर्ड इंफॉर्मेशन इट विल ट्राई टू अप्लाई द ब्रेक्स बेसिकली, फाइन। वो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद इन्वायरमेंट में जो है कुछ चेंजेस होंगे। अगर आपका व्हीकल जो है वो ब्रेक लगा रहा है तो योर व्हीकल विल स्टॉप, एंड विद रिस्पेक्ट टू दो योर व्हीकल अदर व्हीकल्स विल बी आल्सो गेटिंग अफेक्टेड, so your whole environment is getting affected, right? तो बेसिकली क्या है, वर्किंग क्या है, एजेंट जो है आपका एनवायरनमेंट से इनपुट ले रहा है या परसेप्ट ले रहा है थ्रू द सेंसर, और वो जो इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पे उसका कुछ रूटीन है, यहाँ पे मेन प्रोग्राम है या मेन रूटीन है, तो बेसिकली एजेंट को गाइड करेगी कि तू क्या इसमें एक्शन परफॉर्म करना है या क्या टास्क परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू द कैप्चर्ड इंफॉर्मेशन। तो वो जो टास्क परफॉर्म होएगा वो किससे होएगा, विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स, फाइन। यहाँ पे एजेंट के अंदर यू हैव सम काइंड ऑफ मेन रूटीन इज देयर, you can say some program is there, so based upon this captured information from the sensors, the agent basically decides what to do, and that is basically done with the help of actuators। तो वो सारा कुछ ये किसमें हो रहा है, इन्वायरमेंट से वो कैप्चर कर रहा है, और इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चेंजेस जो है वो परफॉर्म कर रहा है, फाइन। यही अगर हम आते हैं PPT पे, तो दिस वाज द टॉपिक्स वी वर डिस्कसिंग, एजेंट्स एंड एनवायरमेंट्स, रैशनैलिटी, then performance measure, that is it is the framework on which we will try to design our agents, fine। So this is a framework is there, P stands for performance measure, P is environment, इस environment में आपका agent जो है वो काम कर रहा है, A is actuators, जिससे वो काम करेगा या आप actions लेगा, sensors is with which the agent will try to capture the inputs, and different type of environment types are there, इसमें आपका एजेंट जो है वो काम करेगा, और different type of agents are there based upon their intelligence capabilities, fine। तो यही हम डायग्राम में डिस्कस कर रहे थे, कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन, एंड एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड एज परसीविंग इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर, मतलब विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स जो आपका एजेंट है वो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो जानकारी है या इंफॉर्मेशन है वो कैप्चर कर पा रहा है, एंड एक्टिंग अपॉन दैट एनवायरनमेंट थ्रू द एक्चुएटर्स, और उसी एनवायरनमेंट में वो एक्ट करेगा based upon the information that it has perceived or it has captured with the help of actuators, fine। अगर हम humans में बात करें तो ये जो आपके सारे sensors, as a sensors it will work, your eyes, your ears, it will basically sense some kind of information, fine। or with the help of arms, with the help of your hands, with the help of your legs, you will be doing some actions, fine। और यही बात अगर हम सेंसर्स और एक्चुएटर्स की अगर बात करते हैं रोबोटिक डिवाइसेस में, उसमें आपके कैमरास और ये इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स
दिस विल एक्ट एज अ सेंसर्स। फाइन। अगर कोई आपकी डिवाइस है वो आगे जाना चाह रही है तो वो विद हेल्प ऑफ कैमरा से डिटेक्ट करेगी ना कि यहाँ पे सारी ब्लैक लाइन है, तो ब्लैक लाइन के ऊपर ही उसने मूव करना है। तो वो ब्लैक लाइन किससे डिटेक्ट कर रही है? विद द हेल्प ऑफ कैमरास या सम इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स आर देयर। तो उस बेसिस, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो वेरियस मोटर्स आपके उसमें डिवाइस में लगे हुए हैं वो अपना काम करेंगी कि रोबोटिक डिवाइस को आगे मूव करना है या लेफ्ट मूव करना है। if there is something, some obstacle is there in the front of the vehicle, so वो based upon that it has to take some decision whether it has to move towards east or it has to move towards west. So the motors will be helping the robotic device to move in further direction. Fine. So now this was the diagram we were discussing. यहाँ पे आपके पास on the right hand side your agent is there. Now this box is there. Now in this box some main routine or main function is there or some main program is written that basically governs the functioning of this agent basically. और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आपका इन्वायरमेंट है जिसमें आपका एजेंट जो है वो काम कर रहा है और वो इन्वायरमेंट बेसिकली वो इन्वायरमेंट को कैप्चर कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। फाइन। जो इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन है या जो जिसको हम परसेप्ट्स बोल देते हैं कि जो भी करंट सिचुएशन है इन्वायरमेंट की वो कैप्चर कर पा रहा है विद द हेल्प ऑफ ये सेंसर्स। और ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोसेस होएगी यहाँ इनसाइड द एजेंट इन द मेन रूटीन और इन द मेन प्रोग्राम। प्रोसेस होने के बाद जो एजेंट है वो क्या आगे एक्शंस लेगा या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेगा। दैट इट विल डू विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स। और जो भी एक्शंस आपके परफॉर्म हो रहे हैं दोज आर बेसिकली doing actions. Those actions will be getting performed in this same environment. Fine. For example, आपने कोई robotic device छोड़ दिया है किसी रूम में। Fine. Some cleaner device is there. Some vacuum cleaner robotic device is there. वो किसी रूम में आपने छोड़ दिया है। तो जो रूम की जो सराउंडिंग्स हैं या जो रूम का इंफ्रा है वो दैट विल बेसिकली एक्ट एज एन इन्वायरमेंट। फाइन। और उसको जो कैप्चर करेगा इन्वायरमेंट को, जो रूम की इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा, जो परसेप्ट कैप्चर करेगा रूम की, वो किससे करेगा? सेंसर्स के साथ कि रूम आपका क्लीन है या सम डस्ट इज देयर। तो वो इंफॉर्मेशन उसके पास वैक्यूम क्लीनर डिवाइस के बाद पास आ रही है। बेस्ड अपॉन दैट इंफॉर्मेशन उसके पास कुछ एक्शंस होंगे कि अगर रूम इज क्लीन देन व्हाट एक्शन इट हैज टू टेक whether it has to move to some other room or not. अगर some dust is there then in that case what actions the device has to take. So those actions it will be taking and it will basically result in some changes in the environment. अगर रूम क्लीन था वो अगर रूम में डस्ट थी तो वो क्लीन हो जाएगा। अगर वो ऑलरेडी क्लीन था देन द डिवाइस विल मूव टू सम अदर रूम। फाइन। ये आपकी एग्जांपल है व्हाई आई एम कंसीडरिंग सम वैक्यूम क्लीनर डिवाइस। इट इज एक्टिंग एज एन एजेंट बेसिकली। वैक्यूम क्लीनर डिवाइस इट इज एक्टिंग एज एन एजेंट जिसको प्रोग्राम हमने किया हुआ है and some of the functions it is able to perform from its own also. Fine. So thus the agent function maps from percept histories to actions. now ये equation है आपकी, ये जो agent function है what it is basically the percept history that is P star leads to the actions. परसेप्ट हिस्ट्री इज कि जितनी भी उसने जो है इंफॉर्मेशन वो कैप्चर की है एनवायरनमेंट की। फाइन। परसेप्ट हिस्ट्री का क्या मतलब है कि अभी अभी रूम की जो सिचुएशन है वो क्या है, नेक्स्ट मोमेंट में फिर वो कैप्चर करेगा तो वो सिचुएशन क्या होएगी, अगेन उसके नेक्स्ट मोमेंट में फिर वो कैप्चर करेगा। तो ऑल दीज कैप्चरिंग थिंग्स आर बेसिकली परसेप्ट सीक्वेंसेस और परसेप्ट history is there. Fine. Yes, I am audible.
Yes, sir. ओके। इसमें एक्चुअली वो कुछ डाउट सा रहता है ना, पता नहीं मीटिंग डिस्कनेक्ट ना होगी। Yes, sir. ओके, ठीक है बेटा। So next is agent program runs on the physical architecture to produce the function F, that is agent equal to architecture plus program। एजेंट बेसिकली जो हमारा एजेंट काम कर रहा है वो आर्किटेक्चर क्या है, डिवाइस का आर्किटेक्चर जिसके ऊपर एजेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। और प्रोग्राम क्या है, ये जो इनसाइड जो मेन रूटीन है एजेंट की, तो बेसिकली जिसमें डिसीजन मेकिंग एक्शन लेने हैं, दैट इज द program. So agent as a whole, it can be defined as an the architecture. Architecture here is referred to the device architecture on which we will be executing the agent program. Fine. Any doubts in this? Agent, okay. Agents and environment. Okay. This was this. Next is now this is we are considering this vacuum cleaner device is there. Fine. Vacuum cleaner device is there. We are considering this as a some agent is there. We are considering this vacuum cleaner device. This device. We are considering this as an intelligent agent basically. Fine. और ये इसके पास कुछ information है regarding this some room locations are there. Room location A is there, room location B is there, whether A is clean or whether B is not clean. So this information is there. Fine. So percepts में उसके पास क्या है, location is there and contents are there. Example A comma dirty. So what this means is the device, our agent is in room location A, and currently the contents of location A are dirty, and it is currently in room location A. And these are the actions which are available for the agent to perform its actions. अब उसके पास actions क्या हैं, left right, absorb the dust और no operation। या तो वो लेफ्ट मूव कर सकता है या वो राइट मूव कर सकता है। अगर डर्ट है तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा सारी डस्ट को, ठीक है, या वो वहीं पे रहेगा, दैट इज नो ऑपरेशन इज देयर। फाइन। सो ये टेबल बेस्ड इसमें फंक्शनैलिटी हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं based upon this if then conditions। if the location is A, the contents are clean, then the action which is to be taken by the agent. For all the situations, we can design the if-then conditions. So that can be programmed in the form of some kind of a table, basically. Fine. So next is the rational agent. The concept of rational agent was there, which we want to discuss. So the term rationality is, it should be the agent, it should be able to do the right thing based on what it can perceive and the actions it can perform. The right action is the one that will cause the agent to be most successful. Fine. Performance measure is an objective criteria for the success of an agent's behavior. For example, the performance measure of vacuum cleaner agent could be the amount of dirt cleaned up, amount of time taken, amount of electricity consumed, and etc. So rationality is basically the agent should be able to do the right thing with whatever inputs it is having. And it should be able to perform the task with maximum attainability of the गोल। फाइन। जो भी उसका गोल है वो अचीव होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स मैक्सिमाइज्ड कैपेसिटी, and whatever actions are available for the agent, it should be able to pick the right actions.
So that is what the rationality, the meaning of rationality is. The agent should be able to do the right thing, and the right thing is one which will cause the agent to be most successful. मतलब वो जो अपना एक्शन है वो इस तरह चूज करे कि उसका जो रिजल्ट है एक्शन करने का, वो जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी एफिशिएंट, मैक्सिमम एफिशिएंट. फाइन. परफॉर्मेंस मेजर हमने डिस्कस किया था. व्हाट इज परफॉर्मेंस मेजर? जो भी एक्शन वो ले रहा है एजेंट आपका, तो उसको मेजर भी तो हमने करना चाहिए ना. वो एजेंट एजेंट हमने रूम में छोड़ दिया है, वो काम कुछ कर नहीं रहा है, तो हाउ हाउ वी विल बी एबल टू मेजर द परफॉर्मेंस? So there should be some performance measure by which we should be able to measure the success of an agent. अब इसी की अगर हम परफॉर्मेंस मेजर की बात करें वैक्यूम क्लीनर एजेंट की, तो उसमें क्या था, तो कितनी वो डर्ट जो है वो क्लीन कर पाता है, कितने कम टाइम में कर पाएगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो यूज कर पा रहा है. These are all the performance measures. You should be able to या जो हम रूब्रिक्स जिसको हम बोल देते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं प्रोग्राम से या अपने डिवाइस से, तो उसको हम मेजर कर सकें, सो दैट द करेक्ट एक्शंस can be taken. Fine. So this was about the rational agents. This is the definition for the rational agent. For each possible percept, that is for each possible input, for each possible situation in which the agent is presently operating, for each possible percept sequence, a rational agent should select an action that is expected to maximize its performance measure, given the evidence provided by the percept sequence and whatever built-in knowledge the agent has. Fine. तो जो मतलब जो भी परसेप्ट हिस्ट्री एजेंट के पास है उसको देखते हुए एजेंट अपना एक्शन इस तरह से चूज करे so that that action will result in maximizing its performance measure. Fine. Given the built-in knowledge the agent has. Fine. Built-in knowledge the agent has based upon the percept history the agent is able to capture from the environment. Based upon all those things, the agent should be able to take the action which is justified and also which is expected to maximize its performance measure. That is basically referred to as an rational agent. Fine. So rational agents, they can perform actions in order to modify the future percepts so as to obtain the useful information. अब ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी एजेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स, तो वो एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे. फाइन. तो अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज होएगा तो जो नेक्स्ट मोमेंट में इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा एजेंट, तो ऑब्वियसली दैट कैन आल्सो चेंज. फाइन. If your environment is getting changed, obviously the next moment what information you are going to capture from the environment, that is also going to change. An agent is autonomous if its behavior is determined by its own experience, that is the ability to learn and adapt. अगर आपका एजेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग कर पा रहा है अपने अपने ओर से based upon the knowledge it has, it is able to evolve itself, then the agent is said to be autonomous. Fine. Then autonomous is it is able to take the decisions on its own. Fine. Without any user intervention. तो वो कैसे पॉसिबल होएगा अगर उसके पास एबिलिटी है टू लर्न एंड अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. फाइन. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई व्हीकल है, ड्राइवरलेस व्हीकल है, तो वो उसके आगे सम ऑब्स्टेकल इज देयर. अब उस कंडीशन में उसको ब्रेक सप्लाई करनी चाहिए, दैट इज द जस्टिफाइड डिसीजन. अगर वो ये डिसीजन ले पाता है देन वी कैन से दैट योर एजेंट इज एन ऑटोनोमस एजेंट. फाइन. नाउ दिस इज द फ्रेमवर्क जिसके ऊपर हम बेसिकली एजेंट को हम डिजाइन कर सकते हैं. नाउ सम फ्रेमवर्क इज रिक्वायर्ड ऑन विच वी कैन
underlying the working of our given agent. Now, what that framework is basically, it consists of 4 factors. जिस फ्रेमवर्क के ऊपर आपका एजेंट हमारा बेस्ड है, वो फ्रेमवर्क 4 फैक्टर्स को कंसिस्ट करता है. वो 4 फैक्टर्स क्या हैं? पी, ये जो पी है दैट इज द परफॉर्मेंस मेजर, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं. ई इज योर इन्वायरमेंट, जिसमें आपका एजेंट जो है वो काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है. Actuators is the the things with which the agent is able to take the actions, and sensors are by which the agent is able to grasp the information. Fine. So consider the task of designing and यहाँ पे हम this driverless vehicle जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं. अगर हम ड्राइवरलेस व्हीकल एज एन एजेंट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो परफॉर्मेंस मेजर वो क्या होएगा, एनवायरनमेंट वो क्या होएगा, एक्चुएटर्स क्या होंगे और सेंसर्स क्या होंगे, वो सारा हम देखेंगे अभी. सो इस केस में ये देखें, हमने ऑटोमेटेड दिस टैक्सी कैब प्रोग्राम वी हैव सिलेक्टेड. फाइन. तो इस केस में हमारा जो परफॉर्मेंस मेजर है वो क्या है? इट शुड बी सेफ, फास्ट, लीगल, कंफर्टेबल ट्रिप, मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट्स. कितने कम टाइम में जो है आपका जो ट्रिप है वो खत्म हो रहा है, वेदर इट इज अ सेफ साइड, जो व्हीकल आपको सेफली आपको लेके जा रही है डेस्टिनेशन की तरफ. उसके बाद रूट्स की जो परमिशन है वो लीगल परमिशन है, और उसका जो प्रॉफिट बन पा रहा है, वेदर इट इज मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट और नॉट. सो दीज ऑल द परफॉर्मेंस मेजर्स. फाइन. अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कंस्ट्रेंट्स, देन वी विल कंटिन्यू विद अवर दिस व्हीकललेस दिस ड्राइवरलेस व्हीकल प्रोग्राम. फाइन. अब वही कैब की जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट क्या होएगा जिसमें उसने ऑपरेट करना है. तो रोड्स इट विल इनकाउंटर and the traffic, it will encounter other vehicles, it will encounter some street lights, it will encounter pedestrians, it will encounter some other customers, it cannot encounter. So this all basically make the environment of your this driverless cab program. Actuators is जो आपका कैब है वो with the help of this steering wheel, जो आपकी कार की डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है. then with the help of accelerators raise or can be increased or decreased. then making the brakes and making the vehicle to stop or slow down. So these are basically you're trying to perform some action with the help of these actuators. Fine. Sorry. And the sensors are, with the help of these cameras, it is able to capture the information regarding other vehicles. उसके पैरेलल कोई vehicle चल रहे हैं तो वो capture कर पाएगा. Then speedometer is there, क्या उसकी present speed चल रही है, location is there, कितने revolution जिसका जो wheels है वो कर चुका है. So all this will be as a helping information for this cab program or automated driverless cab program. So these all things will be there. Fine. So for this automated cab program, we have performance measure as this, environment as this, actuators as this, and sensors as these parameters. Fine. सिमिलरली अगर हमारे पास अगर हम और भी एजेंट्स की बात करें, तो जो व्हीकललेस कैब प्रोग्राम है वो हमारा एक तरह का एजेंट प्रोग्राम है. और भी अगर दिस एजेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो फॉर एग्जांपल देयर इज अ मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम इज देयर, जो मतलब रिकमेंड करता है पेशेंट्स को कि क्या उसके बेस्ड अपॉन द इट्स डिजीजेज या सिम्टम्स, क्या उसको आगे जो है ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या उसको मेडिसिन जो है वो सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए. तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. फाइन. तो
अगर हम मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका जो परफॉर्मेंस मेजर है वो क्या है? हेल्थी पेशेंट इज देयर, मिनिमाइज कॉस्ट एंड लॉसूट्स आर देयर। फाइन। मतलब जो पेशेंट है वो उसकी हेल्थ, हाउ इट इज गेटिंग राइट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ मेजर, इट इज बीइंग कैप्चर्ड। देन जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो मिनिमाइज होनी चाहिए। और उसका जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट क्या है उसका? द पेशेंट इज देयर, the patient is there, hospital is there, staff is there. So this all will make the environment for medical diagnosis system. Fine. और अगर हम बात करें एक्चुएटर्स की, तो वो जो स्क्रीन डिस्प्ले है उस पर आपके कुछ टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस वो उसमें फिल करेगा एंड उसको ट्रीटमेंट रिकमेंडेड होंगे, डायग्नोसिस क्या डायग्नोसिस होना चाहिए। तो दीज आर बेसिकली एक्टिंग एज एन एक्चुएटर्स। सेंसर्स इज योर एंट्री ऑफ सिम्टम्स आर देयर। ऑब्वियसली जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं उसी के बेसिस पे आपको जो सिस्टम है वो रिकमेंड करेगा ना। पेशेंट्स आंसर्स, जो आंसर्स जो हैं वो भी एक्टिंग एज एन इनपुट टू द डायग्नोसिस सिस्टम। Fine. So this is another this agent we are discussing, that is medical diagnosis system. So the questions questions can come in the exam. I mean, explain the P's the P's framework for medical diagnosis system. तो उसमें आपको ये जो चारों फैक्टर्स हैं वो आपको you will be required to explain all these four factors regarding the medical diagnosis system. Next is another this agent is there, that is part picking robot is there, some device is there, robotic arm is there which is used for 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 picking some devices in some organization, in some factory or something like that. So performance measure is percentage of parts in the correct bins. परफॉर्मेंस में ये क्या होएगा? अलग अलग बिन्स उसके पास दिए हुए हैं और जो पार्ट्स वो पिक करके उन बिन्स में डाल रहा है, तो हाउ व्हाट इज द करेक्ट परसेंटेज, दैट इज द परफॉर्मेंस मेजर। इन्वायरमेंट क्या होएगा? कन्वेयर बेल्ट विद द पार्ट्स एंड बिन्स। जिस बेल्ट पे वो जो आपकी रोबोटिक आर्म है वो इंस्टॉल्ड है, दैट इज द एनवायरनमेंट। जो भी उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जिन बिन्स में उसने जो सामान है वो डालना है, दैट इज द एनवायरनमेंट। देन एक्चुएटर्स आर देयर, ये जो उसकी रोबोटिक आर्म होएगी जिससे वो पिक करेगा, दैट विल सर्व एज एन एक्चुएटर। सेंसर्स विल बी, cameras will be there and joint angle sensors. So by this will be perceiving the information from the environment. Fine. So this will be the another this is again some another agent. English tutor is there. So you can go through all those parameters. What are the different the framework parameters for their English tutor agent basically. Fine. So next, यहाँ तक किसी को doubts है? Anyone having any doubts till this? No, sir. Okay. आज अटेंडेंस कम क्यों है? क्लास आपकी मेरे ख्याल कितनी है? 110-20 के आसपास है शायद, है ना बच्चे? व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ? टोटल स्ट्रेंथ क्या है क्लास की? फिफ्टी सिक्स, 100 प्लस है ना? तो ये बेटा अटेंडेंस का ख्याल रखें। अभी आपको पता ही है अटेंडेंस आपके सामने लग रही है, यू गाइस आर आल्सो एबल टू सी योर अटेंडेंसेस। तो अपने अटेंडेंस का ख्याल रखें और कंटेंट भी मतलब तभी ग्रास्प हो पाएगा अगर रेगुलर रहेंगे तो।
ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो कन्वे कर देना आप लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो आगे चलें। इन्वायरमेंट टाइप्स आर देयर। इन्वायरमेंट टाइप्स से हमारा क्या मतलब है कि different environments in which your agent will be operating basically. Fine. तो अगर हम fully one category is fully observable and partially observable. अगर हम ये environment की बात करें, अगर ये सारा का सारा environment agent को ऑब्जर्व हो रहा है, अगर एजेंट जो है वो सारे का सारा environment ऑब्जर्व कर पा रहा है, then it is basically referred to as a fully observable environment. अगर कुछ partial environment ही उसको एजेंट को दिखाई दे रहा है, then it is basically referred to as a partial environment. For example, suppose आप चेस खेल रहे हो, ठीक है, तो चेस में आपको सारे जो बोर्ड है, जो बोर्ड के ऊपर सारे पीसीज हैं, वो दोनों दोनों प्लेयर्स को दिखाई दे रहे हैं ना। दोनों प्लेयर्स को सारा जो चेस का बोर्ड है, या दोनों एजेंट्स को चेस का सारा जो बोर्ड है वो दिखाई दे रहा है। तो इन दैट केस, इन केस ऑफ चेस वी कैन से दैट एनवायरनमेंट इज फुली ऑब्जर्वेबल। फाइन। अगर हम उसकी पोकर गेम की बात करें या कुछ कार्ड्स की बात करें, तो उसमें कुछ कार्ड्स तो आपके ओपन होंगे, मतलब फ्रंट पे पड़े होंगे, कुछ कार्ड्स जो है वो दूसरी पोजीशन में पड़े होते हैं। तो जो आपका ओपोनेंट है उसको सारे कार्ड्स तो पता नहीं होएगा कि क्या है आपके पास क्या नहीं। तो दैट इज द पार्शियल ऑब्जर्वेबल थिंग, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट के बारे में ना पता हो। फाइन। तो दैट इज द पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। मोस्टली जो हमारे सिचुएशंस होती हैं वो पार्शली ऑब्जर्वेबल होती हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस यू कैन से दैट। नेक्स्ट कैटेगरी इज डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। फाइन। नेक्स्ट कैटेगरी फॉर द एनवायरनमेंट इज डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। तो इसको हम अगर बात करें, एक सेकंड बेटा, आई वाज कैप्चरिंग द अटेंडेंस। डिफरेंट आपके इंस्टेंस पे जो अटेंडेंस है वो कैप्चर हो जाती है। आज पहले ही सेव करके रख रहा हूँ इन केस सिस्टम कहीं उस दिन जैसे ना हो जाए। ये आपकी ना जैसे अटेंडेंस कैप्चर हुई है अलग अलग, बेसिकली टेक दिस अटेंडेंस एट डिफरेंट 4 to 5 इंस्टेंसेस थॉरली, जो मतलब प्रेजेंट रह रहे हैं बच्चे ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास। So next category is deterministic versus stochastic in environment types. So what is there in deterministic is the next state of the environment is completely determined by the current state and the action executed by the agent. Fine. So if the environment is deterministic except for the actions of other agents, then the environment is strategic. Fine. इसमें बेसिकली क्या है, डिटर्मिनिस्टिक इज
इज जो करंट आपकी स्टेट है और जो करंट एक्शन जो आपका एजेंट ले रहा है, बेस्ड अपॉन दैट आपकी जो इन्वायरमेंट की जो नेक्स्ट स्टेट बनेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द करंट स्टेट एंड द एक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द एजेंट, दैट इज बेसिकली रेफर टू एज अ डिटर्मिनिस्टिक. फॉर एग्जांपल गेम ऑफ चेस इज देयर. जो भी मैं मूव करूंगा चेस में, उस मूव करने के बाद जो नेक्स्ट बोर्ड की सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी. फाइन. So it was based upon the current board position and my next move. Fine. So the next instant of the board basically changes. So that is deterministic. That is your moves is going to determine the next status of the environment. That is the deterministic thing. Stochastic is, for example, game of dice. You throw the dice and the, the, the present status doesn't matter. Fine. I mean, it is all about probability. The game of dice. What this outcomes are going to come. So it is not dependent upon your current state or something like that. So that is the stochastic thing. Next is your episodic versus sequential. So the agent's experience is divided into atomic episodes. Each episode consists of the agent perceiving and then performing a single action. And the choice of action in each episode depends only on the episode itself. Fine. For example, assembly line is there, and sequential में आपका है, for example, chess program, that is current decision affects all the decisions. मतलब आपका ये है कि एपिसोडिक में जो जो एजेंट की जो वर्किंग है, दैट इज डिवाइडेड इनटू सम एपिसोड्स. फाइन. फॉर एग्जांपल आपका एक कोई इंडस्ट्रियल रोबोटिक इंस्टॉल्ड है आपका किसी किसी फैक्ट्री में. फाइन. अलग अलग रोबोटिक आर्म्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं. तो पहली जो रोबोटिक आर्म है उसके पास कुछ कुछ वो वाटर बॉटल आएंगी. फाइन. वो उसके ऊपर वो कुछ पेपर है या वो रैप कर देगा. रैप होने के बाद वो जो बॉटल्स हैं वो अगले फेस में चले जाएंगी. वहाँ पे जो जो भी आम आपकी लगी होगी वो उसको और फर्निश कर देगी या उसके ऊपर कुछ कैप वगैरह लगा देगी बॉटल के ऊपर. तो वो होने के बाद जो आपके बॉटल्स हैं वो नेक्स्ट फेज में चले जाएंगे. मतलब आगे जो उसका जो रोबोटिक आर्म है वो उसको क्लीन कर रही होगी या उसको फाइनल टचिंग दे रही होगी. तो डिवाइडेड इनटू स्टेजेस. द वर्किंग और ऑपरेशंस आर डिवाइडेड इनटू stages are there. Fine. So that is episodic is there. Sequential is you can say the uh, continuous actions make up the agent's working. Fine. The continuous decisions which are being taken, that will basically make up the working of the this your agent basically. Fine. Sequential is like so previous moves हैं वो affect कर रही हैं आपकी next move को. Fine. फॉर एग्जाम्पल चेस में आपने कोई ओपनिंग की है. ठीक है. तो जो आपका ओपोनेंट है वो उसको ये हो जाएगा कि हाँ मेरी उसने ये वाली ओपनिंग की है, इंडियन ओपनिंग की है, तो मुझे कुछ ऐसा खेलना पड़ेगा सो दैट आगे जाके जो है वो मेरा जो अटैक है ये कुछ इस तरह का बन सके. प्रीवियस मूव्स बेसिकली जो है वो अफेक्ट करती हैं decision making process को. Fine. So that is what the sequential thing is all about. Then is your static versus dynamic. Static basically आपका वो है कि जिसमें environment does not change while the agent is working. Fine. जब आपका एजेंट कोई एक्शन ले रहा है तो उसमें आपका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा. फॉर एग्जांपल क्रॉसवर्ड पजल इज देयर. अब क्रॉसवर्ड पजल पजल में बेसिकली क्या हो रहा है, आप उसको फिल कर रहे हो पजल को, तो जो पजल है वो तो वैसी की वैसी रह रही है ना. जितने उसमें मिसिंग मिसिंग ब्लैंक्स थे या मिसिंग स्पेसेस थी
वो फिल हो रही हैं, पजल तो वही रहेगी. So that is what the environment remains the same. Then dynamic is there, that is cab driver program is there. डायनेमिक इज जिसमें आपका जो environment है वो भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एजेंट्स एक्शन. फाइन. आपका जो कैब ड्राइवर प्रोग्राम है वो किसी और व्हीकल के आगे आ जाता है, तो उस व्हीकल को या तो ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी या उसको अपनी जो स्पीड है वो कम करनी पड़ेगी. So that is it is also affecting the environment. So that is what the dynamic thing is, dynamic environment. Next is your discrete versus continuous. Fine. Discrete मतलब a limited number of distinct, clearly defined percepts and actions. फॉर एग्जाम्पल चेस में आपके पास कितने 64 स्केल्स होते हैं ना, तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्केल्स आर देयर. आपको पता है कि जो ये जो आपके वो हैं मूव पीसीज हैं वो विद इन दोज 64 स्क्वेयर्स जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस. लिमिटेड नंबर ऑफ दिस यू कैन से ऑप्शंस आर देयर. so that is what the discrete thing is. Continuous is अगर मैं बात करूं उसकी आरजीबी, अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं मैं इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स, मेरा मेरा जो कलर स्पेस है वो आरजीबी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. तो आरजीबी स्पेस क्या है? it can be red, it can be green, it can be blue, it can be combination of red and green, combination of green and blue, and it can be combination of point values. तो आपने देखा ही है कि कैसे आप कलर वेरिएशंस आप कर सकते हो. Infinite number of values are there. So that is a continuous thing. That is environment have so much of an options available. Fine. Then single agent versus multi-agent. An agent operating by itself in an environment. For example, crossword puzzle. एक ही बंदा खेल रहा है. That is single agent. Multi-agent is आपकी कोई वीडियो गेम्स है उसमें यू आर प्लेइंग और जो अगर आपके एनिमीज हैं उसको भी हम अगर एजेंट्स कंसिडर करें तो दोज आर बेसिकली द मल्टी एजेंट्स. फाइन. ठीक है. एनी डाउट इन दिस? ओके. बेटा पूछ सकते हैं कोई भी अपना माइक वगैरह ऑन करके. एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द टॉपिक्स यू कैन आस्क. No, sir. ओके. No, sir. ओके फाइन. ये पढ़ के रखें जो भी स्लाइड्स मैं दे रहा हूँ, कंटेंट्स जो भी हम कवर कर रहे हैं क्लास में जितनी पीपीटीज वो अपना पढ़ के रखें. फ्राइडे को वी विल टेक सम वाइवा. वही जो ऑनलाइन वाइवा हो जाए, वाइवा मतलब क्विज वगैरह हो जाएगा, तो वो जो परफॉर्मेंस है वो आपकी फिर इट विल काउंट बेसिकली. ठीक है. तो एक बारी कंटेंट्स वगैरह भी अपने देख के रखें. तो नेक्स्ट इज टाइम आपका. Should we continue with this next topic, agent types? सर टाइम हो गया, रहने दो. वही टाइम आपका थोड़ा सा रह गया था. नेक्स्ट क्लास कितने बजे होती है आपकी? 11 बजे? हाँ जी सर, 11 बजे आती. तो आप लोगों को भी ब्रेक चाहिए. चलें ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड अटेंडेंस दोबारा मैं कैप्चर कर लूँ एक बार. हाँ जी, अटेंडेंस देख लो.
ये आपकी अटेंडेंस ये हुई है कैप्चर। कुछ और इंस्टेंसेस भी हैं। ये है बेटा नेम्स। Sir, Tandem sir. ठीक है, नेम्स हैं सभी के। सर जिनकी अटेंडेंस हो गई सर वो लीव कर दें। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। 63 64 के आसपास हैं बच्चे, 65। दीज आर ऑल द नेम्स। अभी किसी का मिसिंग है बता दें, अभी बता दें। हम्म? किसी का मिसिंग है अभी बता दें बेटा। Sir, 1707 688। बस उसमें डाल दो, चैट में डाल दो। चैट में डाल दें बेटा। और ये मतलब it basically captures at 4 to 5 instants during the whole lecture. It's not at the end point, मतलब beginning में 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 45 minutes. So all those things are captured and accordingly it will make the final list. बाकी आज अभी अपना उसमें डाल दो, जिसको नहीं आया चैट मैसेज में डाल दो, एंड अकॉर्डिंगली जिनका हो गया वो लीव करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. अभी मत डालें रोल नंबर, जिनको अपनी अटेंडेंस नहीं वहाँ पे दिखाई दी, बस वही रोल नंबर्स डालें अपना।
तो टॉप में देखना था, जी टॉप में। क्या अटेंडेंस देखनी है? यस सर, इट्स क्लियर। एक सेकंड, एक सेकंड। बाकी बेटा जिनका नेम्स हैं वो वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वो मीटिंग अपना हो सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये है स्टार्टिंग से, these roll numbers are there। जिनका हो गया वो they can leave it। यस सर, इट्स देयर। ठीक है, यस सर। Can I leave? हाँ जी। Should I leave? Sir, 722. जिनका हो गया बेटा लीव कर दें। Okay. सर 672। Sir, 722. 672 यस सर। अटेंडेंस में नहीं है। सर मेरा नेटवर्क इशू हुआ था। उसमें डाल Sir, दो I चैट मैसेज में, think चैट मैसेज में बेटा रोल नंबर डाल दो बस। आई विल नोट इट डाउन, उसमें रोल नंबर डाल दो अपना। सर डाल दिया। बस ठीक है, sir, done. ठीक है बेटा। थैंक यू सर।